today we are going to start with our English grammar subject, chapter 10, present tense. So children, open your grammar textbook and come to page number 30. So first we are going to see about the introduction of this chapter. So present tense is what? It is a form of verb. Okay. So what are verbs? Verbs tell us about the time of action. Action का जो time है वो बताते हैं verbs. ठीक है. For example, I go to school every day. I go to school every day मतलब ये present हो गया. ठीक है. Like I go to school every day, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ. Then I went to school yesterday. It is a form of past tense. कल मैं कल स्कूल गई थी. So that verb is went. And then I will go to school tomorrow. इसमें we are being told a future tense. Future के बारे में बता रहे हैं that I will go to school tomorrow मतलब मैं कल स्कूल जाऊंगी. So will go. Okay, now यहाँ पे go, went and will go ये verbs के forms है जिसके थ्रू हमको sentences के बारे में पता चल रहा है कि वो past में है, present में है या future में है. So in this chapter we are going to study about the present tense and remaining past tense and future tense it will be studying in the next chapter, that is chapter 11 and 12. So we'll go through this once again. Here first sentence में I go to school every day. Okay, so here the word go represents the present tense. Okay, जिसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं, present tense. Okay, second one I went to school yesterday मतलब मैं कल स्कूल गई थी. तो verb went, the word went वो बता रहा है कि मैं कल स्कूल गई थी. ठीक है. So went here represents the past tense. Then in the third one I will go to school tomorrow. Like मैं कल स्कूल जाऊंगी. So will go states the future tense. Okay. So we'll be seeing the present tense in detail in this chapter. Okay. So now next we are going to study about simple present tense. Okay. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस चैप्टर के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? The verbs that tell us about actions that take place regularly. मतलब वो actions जो regularly होते हैं, ठीक है, वो किसमें आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके. The verbs that tell us about actions that take place regularly are in the simple present tense. For example, we will see. You can see this in your textbook also on page number 30. So first example is Rekha swims in the pool. Okay, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा verb in the present tense, that is swims. Rekha swims in the pool. Next, Ravi drinks a glass of milk every day. इसमें drinks. Then third one is the girls swim in the pool. यहाँ पे the word swim is in the present tense, simple present tense. Now see, जैसे हमने ऑलरेडी verbs में पढ़ा है कि सिंगुलर फॉर्म के साथ वर्ब के बाद s ऐड होता है. तो रेखा स्विम्स इन द पूल. सेम इन द थर्ड सेंटेंस में क्या था? गर्ल्स है. ये प्लूरल फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे जो वर्ब है उसमें s ऐड नहीं होगा. द गर्ल्स स्विम इन द पूल. सेकेंड वन वाज रवि. सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ s आ जाएगा. तो रवि ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. ओके, सो दीज वर्ड्स are coming under simple present tense. Okay children. So now next is about permanent facts or general statements are also expressed in the simple present tense. अब simple present tense में और क्या आता है? जो permanent facts होते हैं मतलब जो चीज permanent है, ठीक है, या general statements, these are also coming under simple present tense. ये आपको इजीली पता पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे सेट्स जो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका क्या मतलब है? सन जो होता है वो सेट कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट में. ठीक है. ये परमानेंट ही है, वो ईस्ट में तो सेट हो नहीं सकता है. ठीक है. तो जो परमानेंट फैक्ट होते हैं वो भी किसमें आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सेकेंड वन, द अर्थ गोज राउंड द सन. अर्थ किसके अराउंड घूमती है? सन का. तो ये भी परमानेंट फैक्ट हो गया.
या कोई जनरल स्टेटमेंट्स हो तो ये सब भी किसमें आ जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके. So students, we have already gone through simple present tense. Now we'll be starting this exercise. So take out your pencil and erasers and start writing as I am explaining you. That is on page number 30. Question A. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in brackets. यहाँ पे brackets में हमको verbs दिए गए हैं, उसको correct form में use करना है हमको and blank को fill करना है. जैसे फर्स्ट वन इज अमीना ऑलवेज डैश हर बुक्स फ्रॉम दिस शॉप, और ब्रैकेट में जो वर्ड है दैट इज बाय. सो बाय को करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है. तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा अमीना वो है सिंगुलर. ओके, सिंगुलर फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ क्या लगता है, एस. सो बाय के साथ एस लग जाएगा तो दैट विल बी बाइस, BUYS. अमीना ऑलवेज बाइज हर बुक्स फ्रॉम दिस शॉप. Second one is good citizens dash all rules. The word is obey. अब good citizens that is plural, तो obey का obey ही रहेगा वो. Good citizens obey all rules. Number 3 is Tabassum dash her grandparents on weekends. The verb is visit. अब यहाँ पे again Tabassum that is singular, तो visits हो जाएगा. Visit के साथ s लग जाएगा. Visits her grandparents, वो अपने grandparents को visit करती है on weekends. Number 4 is Ajit dash animals. The word is love. अब अजित singular तो loves के साथ s लग जाएगा, that is loves. Ajit loves animals. Okay, so number 5 is they dash the news daily. The word given is watch. अब दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो वर्ब फॉर्म है वो वॉच सेम ही रहेगा, उसमें विल नॉट ऐड एस. सो दे वॉच द न्यूज डेली. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हमने ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट विल बी कमिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, मतलब वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन that is still going at the time of speaking. ठीक है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है. That is the simple present continuous tense. Okay, we use the present continuous tense to talk about an action that is still going on. मतलब वो अभी भी चल रहा है वो एक्शन on at the time of speaking, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब उसमें हम क्या यूज करते हैं, we use and is are as per the sentence. जैसे हमारा सेंटेंस है, I के साथ हम am यूज करते हैं. ठीक है, सिंगुलर के साथ s आता है एंड प्लूरल के साथ are आता है. एंड add ing to the main verb, जो मेन वर्ब है हमारा उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, ing फॉर्म. जैसे drink, drinking. ओके, read, reading. To change it into its present continuous form. वर्ब को उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम am is are के साथ जो वर्ब है उसमें हम ing फॉर्म यूज करते हैं. ओके, दिस विल बी फर्दर लुकिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, सो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन अ क्लासरूम. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आर जो वर्ब है हमारा स्टूडेंट्स इज प्लूरल. ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ आर फॉर्म यूज होगा. अब आर के साथ जो वर्ब है स्टडी, स्टडी में हम क्या यूज करेंगे, ing फॉर्म. द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन अ क्लासरूम. मतलब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज हो रही है, ये एक्शन हो रहा है. जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन अ क्लासरूम. देन नेक्स्ट, मिस्टर राव इज ड्राइविंग अ कार. मिस्टर राव कार ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज एक्शन चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन. सो अब मिस्टर राव सिंगुलर है तो उसके साथ इज यूज होगा. जो वर्ब है हमारा ड्राइव उसके साथ ing फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, इज ड्राइविंग. देन नेक्स्ट नंबर 3, लैरी इज प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. तो लैरी क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है कंप्यूटर पे, तो वो भी एक्शन चल रहा है. तो लैरी सिंगुलर, उसके साथ इज आ जाएगा. प्ले वर्ब है उसमें हम क्या यूज करेंगे, ing फॉर्म. सो लैरी इज प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. ओके,
Okay students, so these are the examples of present continuous tense. I hope you are clear with this. Now next we will go through the exercise. So children, we have already gone through present continuous tense. Now we will be doing the exercise questions. So question B, fill in the blanks with the present continuous forms of the verbs given in brackets. Now here you are being given in a textbook that you have to use am, is or are plus ing form, but exam में this may or may not come. So present continuous form है तो you have to keep in mind कि आपको am, is, are use करना है plus verb में ing form you have to apply. So here first one, Prem and Rajat dash a letter. So word given is read. प्रेम एंड रजत के साथ क्या लगेगा? आर. ओके, प्लूरल है, दो जने हैं तो प्लूरल हो गया, तो आर विल बी यूजिंग आर. और रीड के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म, तो आर रीडिंग. देन सेकेंड, समबडी डैश एट द डोर नॉक. समबडी इज. ओके, मतलब कोई आया है तो इज. समबडी इज नॉकिंग. KNOCKING, knocking at the door. Number 3 is John and Rita dash to the circus. Go. तो John and Rita दो जने हैं, प्लूरल हो गया तो आर यूज होगा. आर गोइंग, GOING. Number 4 is the artist dash the colors. Artist मतलब एक ही है, सिंगुलर, तो इज यूज होगा. इज मिक्सिंग. ओके, MIXING, mixing the colors. Number 5, everyone is working silently. जैसे वर्क दिया हुआ है तो everyone is. ओके, working, WORKING. Number 6, Naman dash to school. साइकिल, तो Naman is cycling. Naman के साथ is यूज होगा. साइक्लिंग, अब CYCLING, जो L के बाद E है that we will remove E और आ जाएगा ING. नंबर 7, आई डैश इन द पार्क. अब आई के साथ तो हम एम यूज करते हैं. आई एम वॉकिंग, WALKING. देन नंबर 8, समीरा डैश अ केक. बेक, तो समीरा सिंगुलर, तो समीरा के साथ इज यूज होगा. इज बेकिंग, BAKING. अगेन यहाँ पे ई है तो ई को हम रिमूव करेंगे और देन ING ऐड करेंगे. ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन सी. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? पिक्चर है, उसको देख के हमको फिल करना है. सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. जैसे द डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर, तो बाग दिया हुआ है तो डॉग इज बार्किंग. ओके, देन द स्ट्रेंजर डैश फ्राइटेंड, तो लुक, तो अगेन यहाँ पे द स्ट्रेंजर इज लुकिंग फ्राइटेंड. ओके, देन अ चाइल्ड डैश हिज शर्ट. पुल, तो उसके साथ आ जाएगा इज पुलिंग. देन द ओनर ऑफ द डॉग डैश स्टैंड एट अ डिस्टेंस. अब स्टैंड है तो क्या हो जाएगा? इज स्टैंडिंग. यहाँ पे सब सिंगुलर फॉर्म्स में ही है. ओके, देन ही इज टू बिजी डैश टू अ वुमेन. ओके, यहाँ पे टॉक यूज करना है. सो यहाँ पे सी ऑलरेडी इस आगे लिखा हुआ है तो अगेन हम इस नहीं लिखेंगे. He is too busy talking to a woman, poor stranger. Okay. Then last question is question D. What would the people in the picture say if you ask them these questions? अब as per the picture हमको answers लिखने हैं. Guess and write their answers. जैसे first one, are you washing your car, Mr. Malhotra? So no, I am not. I am cooking. जो पिक्चर में एक्शन हो रहा है हमको वो लिखना है. No, I am not. I am cooking. Then number 2, are you watering the plants, Mrs. Nath? So answer will be no, I am not. I am knitting. Knitting मतलब बुनना. ठीक है. Then KNITTING. Then number 3, are you skipping rope, Nitin? No, I am not. I am walking. Are you getting dressed, Anuradha? No, I am not. I am eating. Last one, are you playing cricket, Ahmed? No, I am not. I am playing football. So जो action हो रहा है that we are going to write. So here students, we have finished this chapter number 10, present tense. Go through it, just learn it and then complete it in your grammar textbook.